Hey guys, welcome to another session of Nati Hindi. In the previous video, I had shared a dialogue regarding the nurse and the patient who was bitten by a cat. Now, what I have planned is that in today's video, I will do the note taking of the same dialogue. And the reason I want to do this is just to share a little bit of perspective regarding note taking. What can you do and what can be avoided while taking notes when you are practicing dialogue and when you are giving your exam so that you get a very good score. So let us get straight to the point and let's start taking notes. And meanwhile, I'll also explain my mindset and how I take notes, what is there in my mind so that I can come up with everything and I do not miss any content. We do have prediction files for the year 2021 wherein approximately 20 to 25 dialogues we have written, which have been repeated a lot, which have been asked to a lot of students of ours. So we have made that file. If you are interested in grabbing that file from us, we do have this MNMMPT Nati on Facebook. Search there and please text us on Messenger saying that you are interested in the prediction file of Nati Punjabi or Hindi, and we will help you from there. Let's get started. This dialogue is a conversation between a nurse, Miss Mariam, and a patient who was bitten by a cat. Miss Mariam speaks in English and the patient speaks in Hindi. The dialogue begins now. Good morning, I'm Mariam. I am the nurse on duty today. How can I help you? How will I speak this? सुप्रभात, मैं मरियम हूँ. मैं यहाँ पर आज काम करने वाली नर्स हूँ. मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? Now, how did that flow come? What I normally do is I will only write down the important words and that too in the short form. Now, if you paid attention when the speaker was giving me the introduction of what the dialogue is going to be about or who are the people involved in the dialogue, what I normally do is I will straight away make their short form and I will just start picturizing that scenario in my mind because it helps me that okay, what's going on. Now when they were giving me the introduction, I visualized that okay, there is a hospital, there is a nurse, there is a patient. It becomes very easy for you to talk when you start visualizing things around you. All right, so that's my first thing that I do. Second, for me, nurse, Miss Mariam, I immediately made a short form. Then patient, cat. I know that there is a patient, there is someone who's bitten by a cat. So cat will be CT for me, patient will be PTNT for me, nurse, Miss Mariam, and all that. So good morning, GM. I am Mariam. I'm on nurse on duty today. Now, what are the important words in this line? I'm a nurse on duty today. So nurse and on duty today. So nurse and duty, I've written that. And how can I help you? Now, how can I help you? Such a long line. You don't need to write the entire line. I've just written help. But if you see, I've made a question mark. I always put a question mark if the sentence was in the form of a question. That means it was a question because I want to make sure that when I deliver, it comes out in the form of a question. So putting a question mark will be very important for you guys. Next segment. नमस्ते मरियम, मैं आशा करता हूँ आज आप ठीक हैं. क्या आप ये मेरा हाथ देख सकती हैं? कल रात को मेरी बिल्ली ने मुझे मेरे हाथ पर काट लिया है. Alright, now again, main words. What he said is Namaste Miriam. So I've written Namaste is NM, Miriam is M. Now I know who is M over here. Hope you, आशा करता हूँ कि आप आज ठीक हैं. Hope you are okay. Again, question. It's in the form of a question. I hope you're okay. You know, it sounds like a question. Then the next one was, can you see my hand? Actually, I should have put this question mark over here in the next one. So that's a mistake. So I should have put it in the next segment. Can you see my hand? So hand, see. Enough. Then last night, कल रात को मेरी बिल्ली ने मेरे हाथ पर काट लिया था. So last night, cat bitten hand. Now, the reason I'm writing this in this, short forms and only the important words is it will not be difficult for me to form the sentence because I was also paying attention to the audio and I'm trying to figure out what's the scenario and what's going on. I'm not just focusing on taking notes. So because I'm doing two things at the time, I'm involved in the story and also I'm taking notes of important words. It helps me to create that flow and to speak with that flow. All right. So how will I say this? Hello, Miriam. I hope you are okay.
Can you please check my hand or can you please see my hand? Last night my cat had bitten on my hand. Simple. Next. Oh, your hand doesn't look that good. Let me take off the bandage that you have applied and have a closer look. It is looking very nasty. Alright. Now what were the important words? Oh, that expression has to be there. So even in English you'll say oh. And then she said, your hand doesn't look good. So what will you say? आपका हाथ कुछ ठीक नहीं लग रहा है. Now you will not say आपका हाथ अच्छा नहीं लग रहा है. You have to understand the meaning. That's what I said in the previous videos, that we are not here to translate word by word. We have to deliver the correct meaning. So अंडरस्टैंड इफ यू टॉक इन हिंदी, विल यू से आपका हाथ अच्छा नहीं लग रहा है? नो. आपका हाथ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोफाउंड और सभ्य सुनाई देता है. सो ओ, आपका हाथ कुछ ठीक नहीं लग रहा है. फिर उसने क्या कहा? लेट मी टेक द बैंडेज ऑफ एंड हैव अ क्लोजर लुक. तो उसने ये बोला कि मुझे इस बैंडेज को निकालने दीजिए और इसे पास से या करीब से देखने दीजिए. तो बड़ा ईजी है, वो मीनिंग कुछ हार्ड नहीं है डिलीवर करना. बट अगर मैंने बैंडेज ऑफ, क्लोजर लुक ये ना लिखा हो तो मैं फिर वो शायद नहीं बोल पाऊंगा, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा. तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लिए. नेक्स्ट, मेन क्या था अगली लाइन में? वेरी नास्टी. दिस लुक्स वेरी नास्टी. तो मुझे वेरी नास्टी लिखना था. ये तो बहुत ही खराब दिख रहा है. वेरी नास्टी, बहुत ही खराब दिख रहा है. अब अगर आप इसको ऐसे बोलते हैं, ये तो खराब दिख रहा है, लेकिन आपने वेरी नहीं बोला, तो फिर वहाँ मार्क्स कट जाएंगे. वो जब भी वेरी बोलते हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच, वो वेरी का एक मतलब है, आपको बोलना पड़ेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वो आप मिस नहीं कर सकते ये सोच के कि मैंने धन्यवाद बोल दिया मेरा काम हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो वेरी नास्टी यानी ये तो बहुत ख़राब दिख रहा है, हमें ऐसे बोलना है. और जब भी इसमें बेल साउंड नहीं है, क्योंकि मैंने खुद रिकॉर्ड किया है एक स्टूडेंट के उससे, उसको जो एग्ज़ाम में डायलॉग आया था रिसेंटली. लेकिन यहाँ एग्जाम में बेल साउंड बजेगा जैसे ही सेगमेंट कंप्लीट होगी. जब बेल साउंड बजे उसके 3-4 सेकंड बाद आप बोल सकते हो. तो आपके पास बेल साउंड के बाद भी करीब 3 सेकंड है नोट्स कंप्लीट करने के लिए. अगर आप कुछ लिख रहे हो, 3 सेकंड के बाद आप बोलना शुरू कर दो बेल साउंड के बाद. मैं कल अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा था और अचानक ही वो गुस्से वाली हो गई और उसने मेरे हाथ पर काट लिया. मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. क्या ये कुछ गंभीर है? मैं बहुत ही चिंतित हूँ. Alright, so even if I stop speaking there in the audio, I still have roughly 3 seconds because there is a bell sound and then I have 3 seconds. So I should understand the value of completing the notes if I'm in the middle of the last sentence. ठीक है. अब उसने क्या बोला कि last night he was playing with his cat. So last night cat. Then suddenly she got angry and bitten on the hand. This is very painful. Do you think there is something serious? I'm very stressed about it. Now, how could I deliver this entire segment in a flow? Because look at the notes. Last night, play cat. Okay. Sad, suddenly, sorry, not sad. Suddenly I've written SD, he angry. Now, obviously, वो गुस्से वाली हो गई या हो गया, वो जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट आप अपने हिसाब से, अगर उसने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है और आपने गलती से कोई जेंडर स्पेसिफाई कर दिया, वो गलत नहीं होगा. सो उसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन से सडनली द कैट गॉट एंग्री, बट कैट से अच्छा आई वुड प्रेफर ही या शी, क्योंकि उसने बोला अचानक वो गुस्से वाली हो गई. अब उसने वाली बोला है तो सडनली शी गॉट एंग्री होना चाहिए. सडनली शी गॉट एंग्री और उसने मेरे हाथ पर काट लिया. एंड शी हैड बिटन ऑन माई हैंड. ये तो इसमें बहुत दर्द हो रहा है. दिस इज़ वेरी पेनफुल. क्या ये कुछ गंभीर है? क्वेश्चन. सो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है. और सीरियस, क्या ये कुछ गंभीर है? पूरा नहीं लिखा है. उसमें मीनिंग, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? गंभीर, सीरियस. इज दिस समथिंग सीरियस? लास्ट नाइट मैं तो बहुत चिंतित हूँ, बहुत चिंतित, वेरी टेंस्ड. मैं हमेशा वेरी को वी लिखूंगा. तो कहीं भी वेरी या बहुत वो बोलें, आप सीधा एक वी डाल दो. आपको पता है वी मतलब वेरी है, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो मैं बहुत चिंतित हूँ, आई एम वेरी टेंस्ड. इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली माई टारगेट इज टू शो हाउ आई टेक नोट्स, नॉट हाउ आई डिलीवर द dialogue. That I will make more videos about it, but specifically if you just focus on how to take notes, that's more than enough, and that is the purpose of this video, how to take notes. Oh, that's very bad. Are you sure that your cat was angry, or was she playing and by mistake she had just bitten you? And what did you do after
getting bitten from her. Did you apply soap or anything? Did you wash your hands thoroughly? Long segment, so I have to be very active, understanding the meaning and also writing the important things. First one, oh, simple. This is very bad, यानी ये तो बहुत बुरा है, not बुरा हुआ. This was very bad नहीं था, वो उसमें था this is very bad. So this is, ये बहुत बुरा है. Now, first I have put question mark because she said, are you sure? She asked a question. So, क्या आपको पक्का पता है कि आपकी बिल्ली गुस्से में थी? क्वेश्चन के फॉर्म में बोलना है. और या वो आपके साथ खेल रही थी और उसने आपको गलती से काट लिया. क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला? Are you sure your cat was angry or she was playing and she had bitten you by mistake? क्या मतलब हुआ? क्या आपको पक्का पता है कि आपकी बिल्ली गुस्से में थी या वो आपके साथ खेल रही थी और उसने आपको गलती से काट लिया? बाय मिस्टेक, गलती से काट लिया. और क्योंकि एंड था उसके बाद, मैंने एंड लिखा है. फिर उसके बाद अगला था व्हाट डिड यू डू, मतलब अगेन अ क्वेश्चन. तो उसके बाद आपने क्या किया? क्या आपने साबुन लगाया? फिर उसके बाद उसने क्या बोला? डिड यू वॉश योर हैंड थरली. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या आपने अपना हाथ ठीक से साफ किया या धोया? क्यों? क्योंकि थरली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उसने थरली नहीं बोला होता तो मैंने थरली लिखा नहीं होता ऑब्वियसली, तो मैं ऐसे बोलता कि आपने अपना हाथ साफ किया या आपने अपना हाथ ठीक से साबुन से धोया? नहीं. लेकिन सॉरी, क्या आपने अपना हाथ धोया साबुन से? नहीं. लेकिन उसने क्या बोला? डिड यू वॉश योर हैंड्स थरली. क्या आपने अपना हाथ ठीक से साफ किया? वो बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटी छोटी चीज़ होती हैं, थरली, वेरी, यहीं पे मार्क्स कटते हैं. तो हम जब नोट्स लेते हैं हमें मेक श्योर करना है कि ये जो वर्ड्स हैं वो मिस ना हो. तो हमें एक बार फिर से देखना है कि और सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया कि आफ्टर बिटन. तो उसने ये कहा कि डिड यू अप्लाई सोप आफ्टर गेटिंग बिटन बाय योर कैट. तो क्या आपने साबुन लगाकर उसे साफ किया आपकी बिल्ली के काटने के बाद? ये पूरा सेंटेंस था. सॉरी, मैंने बगल वाला देखा नहीं. और अगली लाइन थी क्या आपने उसे ठीक से साफ किया? डिड यू वॉश इट थरली. सिंपल सेगमेंट है, थोड़ा लंबा था. नोट टेकिंग और इन्वॉल्व इन द डायलॉग, ये दोनों को साथ में लेके चलेंगे, फिर ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट. जी हाँ, उसने पहले खरोच मारी और फिर काटा और मैंने उसके बाद अपने हाथ पर साबुन लगाया और गर्म पानी से उसे अच्छे से साफ किया. उसके बाद मैंने उस पर बैंडेज लगा दिया. Yes, so I'll obviously now speak in English. Yes, she had given me a scratch first. उसने पहले मुझे खरोच मारी, पहले. So she, scratch और first, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी. She had given me a scratch first. फिर उसने काटा. Then bitten. Then she had bitten. फिर उसने क्या किया जो पेशेंट है? I applied soap. फिर मैंने उस पर साबुन लगाया. एंड देन व्हाट डिड ही से कि उसने गर्म पानी से उसे ठीक से साफ किया. सो आई अप्लाइड सोप एंड देन आई क्लीन्ड इट प्रॉपरली, और क्लीन्ड इट वेरी प्रॉपरली और वेरी थरली, जो भी बोलना है, विथ हॉट वाटर. तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? वेरी थरली, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से साफ किया ऐसा बोला है, और हॉट वाटर, गर्म पानी, वो बहुत मेन है. फिर उसने बोला कि मैंने उसके बाद उस पर बैंडेज लगा दिया. देन आई अप्लाइड अ बैंडेज ऑन इट. अप्लाई बोल सकते हो आप, ठीक है. सो व्हाट विल बी द एंटायर सेगमेंट? येस, शी हैड गिवन मी अ स्क्रैच फर्स्ट, देन शी हैड बिटन मी. आई अप्लाइड सोप ऑन इट एंड देन हैड प्रॉपरली क्लीन्ड इट विथ हॉट वाटर एंड अप्लाइड अ बैंडेज. सिंपल. तो मैंने पूरा मैसेज उसी ऑर्डर में कन्वे कर दिया. नेक्स्ट. Well, I see. The wound that I can see is very deep. There might be a chance of infection. Well, अच्छा. तो वैसे बोला, अच्छा, जो घाव मैं देख रहा हूं वो मुझे बड़ा ही गहरा दिखाई दे रहा है. ठीक है. तो उसने क्या कहा कि वेल द वूंड दैट आई सी, आई कैन सी इट्स वेरी डीप. तो जो और आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर आपने उसी ऑर्डर में मीनिंग कन्वे कर दिया है देन डोंट वरी कि यार उसने पहले ऐसे बोला था वर्ड, ये वाला वर्ड बाद में था. हमें वो वर्ड का ऑर्डर्स रखना इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें कि हमने मैसेज करेक्ट डिलीवर किया है, दैट्स इट. अच्छा, जो जैसा कि मैं देख सकता हूँ आपके घाव को, ये घाव मुझे बड़ा ही गहरा दिखता है. ठीक है.
घाव क्यों? क्योंकि वूंड, वूंड इज घाव। मेन वर्ड्स यहाँ क्या थे? आई कैन सी अ वूंड, मैं एक घाव देख सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही डीप, आई मीन ही सेड दैट इट लुक्स वेरी डीप, दैट मीन्स हम बोलेंगे मुझे दिखता है ये बहुत ही गहरा है। उसने बाद में बोला देयर माइट बी अ चांस ऑफ इन्फेक्शन। क्या मेन वर्ड्स हैं यहाँ पे? माइट, क्योंकि वो श्योर नहीं है, माइट, इन्फेक्शन और चांस। और नेक्स्ट लाइन क्या है? देयर माइट बी अ चांस ऑफ इन्फेक्शन। देयर माइट बी अ चांस ऑफ इन्फेक्शन, माइट, इन्फेक्शन, चांस, ये तीन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इसको मैं हिंदी में कैसे डिलीवर करूंगा? मुझे लगता है कि संक्रमण होने की संभावना है। संक्रमण इज इन्फेक्शन, संभावना इज चांस, एंड होने की संभावना है, वो श्योर नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि संक्रमण हो सकता है, संक्रमण हो गया है, नहीं, मुझे लगता है, आई फील, हो सकता है। तो हमने डिलीवर सेम मीनिंग किया है, इसलिए वी आर सेफ। नेक्स्ट, क्या आप इसे साफ कर सकती हैं? और क्या साफ करने के बाद ये ठीक हो जाएगा? क्या आपको लगता है ये आसानी से चला जाएगा या ये कोई बड़ी बात है? ऑलराइट, few things over here. Again, question. So what did he say? क्या आप इसे साफ कर सकती हैं? Very easy. Can you clean this for me? ओके अब उसने यहाँ ऐसे नहीं कहा है कि कैन यू प्लीज़ क्लीन दिस फॉर मी। सो अगर आप यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि क्या आप इसे कृपया कर, मतलब अगर आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कैन यू प्लीज़ क्लीन दिस फॉर मी, अब आप तो मैनर्स और पोलाइट के चक्कर में प्लीज़ बोल दिए, लेकिन आपने कंटेंट ऐड किया क्योंकि उसने कृपया करके नहीं बोला है। तो हमें पोलाइट भी नहीं होना है, जो वो बोलते हैं वही हमें बोलना है। अगर हमें लगता है कि ऐसे नहीं, प्लीज़ आना चाहिए वो, तो भी हम प्लीज़ नहीं बोलेंगे। मैंने ये बहुत बार गलती की थी पहले जब मैं स्टूडेंट था, बहुत साल पहले, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरा काम यहाँ पर मैनर्स सीखना या सिखाना नहीं है। मेरा काम है जो मैं सुनूँ उसको मुझे सीधा का सीधा डिलीवर करना है। तो कैन यू क्लीन दिस फॉर मी क्वेश्चन के फॉर्म में था। एंड आफ्टर यू क्लीन विल दिस बी ओके फॉर मी, ठीक है। उसने क्या बोला कि आप एक बार इसे साफ कर दे, क्या ये फिर ठीक हो जाएगा? सो आफ्टर यू क्लीन दिस फॉर मी विल दिस बी ओके फॉर मी। तो मैंने अगर उसको रिवर्स भी कर दिया, लेकिन अगर उसका मीनिंग सेम आ रहा है कोई बात नहीं, मीनिंग डिलीवर हो गया। नेक्स्ट अगेन एक क्वेश्चन था, क्या आपको लगता है कि आसानी से चला जाएगा? डू यू फील दैट दिस विल गो ईजिली, या ये कोई बड़ी समस्या है और दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम? इजी सेगमेंट था ये। I understand. Doctor will clean it properly and doctor will also give you some antibiotics to stop the infection. Hope that is okay with you. आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। डॉक्टर विल क्लीन दिस प्रॉपरली फॉर यू, चिकित्सक जी इसे आपके लिए ठीक से साफ करके देंगे। एंड और चिकित्सक जी आपको एंटीबायोटिक भी देंगे। एंटीबायोटिक को आप एंटीबायोटिक ही रखें। एंटीबायोटिक को आप दर्द मिटाने वाली दवा भी बोल सकते हो, बट इस केस में मैं उसे एंटीबायोटिक रखूंगा, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। चिकित्सक जी आपको एंटीबायोटिक्स देंगे संक्रमण रोकने के लिए, इन्फेक्शन को स्टॉप करना था ना उसने बोला था, तो संक्रमण रोकने के लिए। होप यू आर ओके विथ इट, आशा करती हूं आप इससे ठीक हैं, या आशा करती हूं आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मीनिंग सेम है। वो ये कह रही है कि होप यू आर ओके विथ इट, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देंगे। वो ये नहीं कह रही है कि होप यू गेट वेल सून विद दिस या होप यू गेट ओके विद दिस। मीनिंग समझना है। उसने ये नहीं कहा है कि आपको एंटीबायोटिक्स लेके आप ठीक हो जाओ, होप करती हूँ, नहीं। उसने कहा कि डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, उससे मैं होप करती हूँ कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो होप यू आर ओके विथ इट। तो आप ये बोलोगे आशा करती हूँ आपको उससे कोई परेशानी नहीं है, आशा करती हूँ आप उससे ठीक हो, या आप इस चीज़ से ठीक हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है। मेरे दोस्त ने कहा था कि वो मुझे आज यहाँ पर मिलने आएगा और मेरे हाथ को देखने आएगा। मैं अभी उसी की राह भी देख रहा हूँ। I don't feel this is very bad. My friend told me he will come and meet me and see my hand. I am waiting for him. This was a very easy segment. Again मैंने मेन चीज़ें लिखी हैं। I don't feel bad, ठीक है। feel FL है, bad BD है, friend लिखा है, he come meet, so he come CM, meet MEET, हैंड सी, तो मैंने HND हैंड लिख दिया सी को। अब आपको हैंड राइटिंग ऑब्वियसली अच्छी नहीं लग रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी। अब मैं हैंड राइटिंग तो अच्छी ऐसे लिख सकता हूँ, होप, ठीक है, होप यू आर
ओके, ठीक है। हैंड राइटिंग तो मैं बड़े अच्छे से लिख सकता हूँ, सुंदर अक्षरों में लिख सकता हूँ और आपको मज़ा भी आएगा, देखने में समझ में भी आएगा, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर मैं ऐसी हैंड राइटिंग में और इस स्पीड में या इस तरीके से लिखूंगा, क्या मैं नोट्स पूरी ले पाऊंगा? नहीं। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम, अगर मैं अपनी हैंड राइटिंग पढ़ पा रहा हूं तो वो ठीक है, आप अपनी हैंड राइटिंग पढ़ पा रहे हो तो वो ठीक है। ऐसे भी नहीं लिखना है कि हम अपनी हैंड राइटिंग ही ना पढ़ पाए, वो भी हमें समझना है, ठीक है। तो मेरे लिए अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं अपनी हैंड राइटिंग पढ़ पाऊंगा। और अगर आप अपनी हैंड राइटिंग से रोज प्रैक्टिस करेंगे, 20-25 दिन बाद आपको वो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो आई विल वेट फॉर हिम, वो बहुत ईजी था, मैं उसकी यहाँ पे राह देखूंगा, तो वो हो गया लास्ट लाइन। तो आई वेट, आई का मैं आई से लिख दूंगा, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ, आई वेट फॉर हिम। ये मेरे ऐसे तरीका रहेगा लिखने का। नेक्स्ट, The mouth of cat is filled with lots of bacteria. This can start with a lot of infection. It is better that you consult the doctor and do as per the guidance given by the doctor. इसमें काफ़ी कुछ कंटेंट था। कैसे? ये जो जब बोलते हैं ना लॉट्स ऑफ, यही वो चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं और हमारे नंबर कटने लगते हैं, ठीक है। माउथ ऑफ कैट हैज़ अ लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया, बिल्ली के मुंह में बहुत सारे कीटाणु होते हैं। यहां पर बहुत सारे बोलना बहुत ज़रूरी है। फिर दिस कैन हैव अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन, अगेन लॉट ऑफ, इससे बहुत सारे संक्रमण होने की संभावना है। उसने चांस नहीं बोला था तो मैं संभावना नहीं बोलूंगा, इससे बहुत सारे तरीके के संक्रमण हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके के संक्रमण, लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन, ये मेन है कंटेंट यहां पर। या लॉट्स ऑफ टाइप्स भी बोला होता तो भी सेम मीनिंग है, लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन में भी सेम मीनिंग है। नेक्स्ट लाइन, बेटर टू कंसल्ट विद द डॉक्टर, मेन क्या है? बेटर कंसल्ट डॉक्टर, बेहतर होगा कि आप चिकित्सक जी से मिलें। कंसल्ट करना क्या होता है? मिलना ही होता है, उनकी राय लें, वो भी हो सकता है, लेकिन मिलना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। एंड डू एज पर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर, और वैसा ही करें जैसा चिकित्सक जी आपको कहते हैं। गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वही उनकी जो सलाह मशवरा होती है, तो और वैसा ही करें जैसा आपको चिकित्सक जी सलाह देते हैं या कहते हैं, दोनों ही चलेंगे क्योंकि मीनिंग सेम है। मुझे नहीं पता कि मुझे इन्फेक्शन होगा या नहीं, पर मुझे चिकित्सक को मिलना अच्छा नहीं लगता है। मुझे वो लोग जो सुई देते हैं उससे डर लगता है। क्या मुझे सुई लेनी पड़ेगी? Very easy. So look at the notes I've written. I don't know that infection will happen or not. Whenever there is a happen or not, होगा या नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, राइट या रॉन्ग, ये मेरी नज़र में मैंने बना लिया है कि ये है कि भाई दिस विल येस और नो, हैपन और नॉट, ट्रू और फॉल्स। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। जब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करो, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग नोट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट फ्रॉम डे वन यू स्टार्ट मेकिंग द शॉर्ट फॉर्म्स। लाइक गुड मॉर्निंग आपके लिए GM हो गया, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो HLP क्वेश्चन मार्क, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, HLP 2 क्वेश्चन मार्क। अगर आप डे 1 से अपने लिए ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बना लोगे ना, कितने सारे सेगमेंट्स में काफ़ी सारी लाइंस जो होती हैं वो रिपीट होती हैं। हर डायलॉग में आज आप कैसे हैं, आशा करता हूँ आज आप ठीक है, ये सब रिपीट होता है। पूरी पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके शॉर्ट फॉर्म्स बने हुए हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो वैसे ही आई डोंट नो दैट दिस इन्फेक्शन विल गो और नॉट, तो वो मैंने लिखा है पहली लाइन में, ठीक है। फिर उसने क्या बोला कि मुझे डॉक्टर को, चिकित्सक लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने क्या लिखा? डॉक्टर नॉट गुड मीट। समझ में आ गया मुझे कि भाई डॉक्टर से मिलना उसको पसंद नहीं है। फिर इंजेक्शन अफ्रेड, 2 वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे कि उसको सुई से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ द इंजेक्शंस और द नीडल, दोनों बोल सकते हो। क्या मुझे सुई लेनी होगी? विल आई हैव टू टेक द इंजेक्शन और विल आई हैव टू टेक द नीडल, दोनों ही सही है। इंजेक्शन मेरे लिए ज़्यादा सेंस बनती है, ठीक है। सो I don't know whether I'll get this infection or not. I'm afraid of seeing the doctors or meeting the doctors. I'm not afraid of seeing the doctors. I don't like to see the doctors. Meaning change ho gaya. I'm so sorry for that. I don't like to see the doctors. I'm afraid of the injections. Will I have to take the injection? So you have to understand the meaning. Next segment. I would advise you to stay calmer and not react. You might have to take syringe if the infection is too bad. ओके, क्या क्या था पहली लाइन में? एडवाइस
टू स्टे कामर, तो एडवाइस टू स्टे काम का CM लिख दिया मैंने, ठीक है। नॉट रिएक्ट, माइट सिरिंज, माइट मतलब माइट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको सुई लेनी पड़ सकती है, ये मेरा डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ द इन्फेक्शन इज टू बैड, अगर संक्रमण बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा, टू बैड। सो अब उसने ये पूरा सेगमेंट बोल दिया है। सो हाउ विल आई मीन डिलीवर इट? एडवाइस टू स्टे कामर, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप शांत रहें, एंड नॉट रिएक्ट, और किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना करें। रिएक्ट करना इज बेसिकली वो उसको आपको हिंदी में बोलना है, थोड़ा वर्ड मुश्किल हो गया, प्रतिक्रिया ना करें, बट रिएक्ट बार बार आता भी नहीं है तो आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। और अगली लाइन में उसने क्या कहा? यू माइट हैव टू टेक अ सिरिंज, तो मैंने माइट और सिरिंज लिखा है। आपको शायद सुई लेनी पड़ सकती है या आपको सुई लेनी पड़ सकती है। इन्फेक्शन टू बैड, अगर संक्रमण बहुत ही बुरा है। सिंपल। नेक्स्ट। ठीक है, मैं चिकित्सक को मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने दोस्त को कह दूंगा कि वो मुझे लेने आ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी भी प्रकार का संक्रमण हो। आपकी मदद और सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। ओके, आई एम रेडी टू मीट द डॉक्टर। और मैं, आप देखिए, इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ। जब वो हिंदी में बोल रहा है मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश में लिखना ईजी है। ओके, आई एम रेडी टू मीट द डॉक्टर, तो मैंने क्या लिखा है? डॉक्टर मीट ओके, और ओके उसने पहले भी बोला था। सो ओके, आई एम रेडी टू मीट द डॉक्टर। फिर उसने क्या बोला बाद में? आई विल टेल माई फ्रेंड टू कम एंड पिक मी अप, ठीक है। तो फ्रेंड, टेल, कम, पिक, ईजी है। आई विल टेल माई फ्रेंड टू कम एंड पिक मी अप। डोंट वॉन्ट इन्फेक्शन, क्यों? क्योंकि उसने बोला था मैं किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, या आई डोंट वॉन्ट एनी इन्फेक्शन, वो भी चलेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर हेल्प एंड सपोर्ट, मदद और सहायता के लिए या सहारे के लिए, जो भी है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर हेल्थ एंड सपोर्ट। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो मैंने सिर्फ टेक केयर लिख दिया, ठीक है। Alright, I think that's the end of the dialogue. Alright, obviously whenever the dialogue ends they will say end of dialogue. That's how you know, your brain knows that okay, my job is done for this dialogue. Again, I will repeat myself that my point of this video was to show how I take notes. You can take notes in an absolute different way. You might be taught by someone to take it differently, and I agree with that. It's not that this is the only way you can take notes. There can be million other ways. I agree with it. It's just that I have been using this method of note taking from many years, and this has helped a lot of students, my students, and they have all passed, because till date, touch wood, I would say not a single student of mine has failed in NATI exam for sure. In the first attempt they have cleared it, and I have taught many students who do not speak Hindi in their daily language, because in India you know that we have so many languages. So it's not that only people who speak Hindi they give NATI Hindi. Now we have a lot of languages like Telugu, Malayalam, and Tamil was there already, but earlier these languages were not there. And students from South India, they have worked so hard and cleared NATI Hindi, and I was so impressed by the dedication they used to show while doing NATI Hindi for those 5 points. So if they who don't speak Hindi in their daily life can clear it, obviously they worked very very hard and had a lot of dedication. I don't think so if people who speak Hindi can ever fail if they just put a little bit of efforts, because your basics is anyways clear. With that, I'll take your leave for this video, and I'll see you in the next video, and we'll discuss something new, something different about NATI, or maybe PT next time, not sure what. But yeah, stay connected with this family. I mean, if you have any questions, just post it in the comment section below. We are more than happy to reply you through the comment, or if we feel that your question needs more attention than just a reply over the text, we will make a video on the same and post it on our channel. Take care of yourself, practice a lot, and I'll be sharing more and more content. Even Manmohit will share a lot of content regarding NATI Punjabi. With that, take care, and I'll see you next time. Bye bye.